Anuji, when you say conscious premier is rich with money and rich with mind, so how these two money and mind getting correlated? Would you please explain it with a few practical business examples? Sure. So, absolutely. So, let's take some couple of practical examples, and we all are here who all are entrepreneurs and business people. So, example number one, uh, you hire an employee who is working very well, and this employee one fine day commits a huge gross error, and this error is such an error which has costed your business, I don't know, lakhs or tens of lakhs. Now, one response which I call an unconscious response is, or unconscious reaction rather than response is, what the hell you have done? You have costed so dearly to the business. How can you do that? And you brought your peace of mind on that whatever helpless soul at this point of time. Okay, in that process, what have you done? You have created fear. You have created insecurity. You have created something which is negative vibrations and demotivation in the energy ecosystem. Now थोड़ा सा इसको फ्लिप करें, रिएक्शन से हम कॉन्शियस रेस्पॉन्स पे जाएं, अनकॉन्शियस रिएक्शन से हम कॉन्शियस रेस्पॉन्स पे चलें. नाउ कॉन्शियस रेस्पॉन्स कुड बी व्हाट, जो हो गया सो हो गया. नाउ लेट मी सेग्रीगेट द परफॉर्मेंस विद परफॉर्मर. सी कोई भी व्यक्ति चाहे 8 दिन के बच्चे से लेके 80 साल तक का ग्रोन अप, the deepest desire in anyone's heart and mind is, I should be recognized. That's the deepest desire, and this is scientifically proven. So anyone who has committed the mistake, you first have to segregate the performance with the performer. The performance is in the question mark, not the performer. Now your conscious response needs to be, hey, why this mistake has happened? One, what correction can be made? Is it lack of training? Is it something you were overwhelmed? Right? And how do we correct it for it not to reoccur in future? See, loss to ho chuka. Loss to ho chuka. Now, in that process, what you are adding further on that loss, the negativity in the ecosystem. और आपने एक को तो सटकाया, on top of it 15 को और मैसेज दे दिया कि भाई ऐसी मिस्टेक गलती से भी हो जाए तो पहले ढूंढ ले. सो द कॉन्शियस रेस्पॉन्स जब आप लेके आते हो तो यू क्रिएट एन एटमॉस्फियर ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी. आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी वेरी thoughtfully, psychological safety. The moment you have only criticized the performance and you have given the space for someone to correct and improve, you have created a net of psychological safety and giving that individual to take ownership. They will take ownership, not to repeat. And in that process, you have not only created the retention of that and many other performers, but at the same time, you have demonstrated. This I call rich with mind. पहला उदाहरण. अब हम रिच विद मनी की बात करें, दूसरा प्रैक्टिकल उदाहरण की बात हो रही है. ठीक है, यू हैव ए कस्टमर जिसके साथ आपका जबरदस्त नेगोशिएशन चल रहा है, या वेंडर को मान लो. ठीक है, एंड नेगोशिएशन दो तरीके से होते हैं. आप व्हाट डू यू वांट, दोनों अपनी विन चाहते हैं मैक्सिमम. बोथ वांट्स टू स्क्वीज मैक्सिमम ऑन द टेबल. नाउ इफ द कॉन्वर्सेशन, और हाँ एक होता है यार जितना मैंने निकाल लिया इज माई विन, उसका भाड़ में जाए. ठीक है, द सेकेंड एस्पेक्ट इज लुक, what you want is the best of services. What I want is the right price or best of the prices. I am running a business, I am not running charity. Let's have that open conversation. And I have done so many contracts myself. What you want, dear customer, is the best of the services. What I want is the best of the prices. Now, can we do a handshake where I get the right price
and I know commit for you the service along with service level agreement, along with risk and reward, along with all the measurable quantified parameters, the conversation has all of a sudden moved to a conscious conversation. And that's what I call rich with money. So these are, I'm sure you can relate to these two examples which I just said. So again, this framework or this terminology is all in terms of applied, and many of these things और दोनों example for example मैंने जो दिए हैं, many of you would have applied in your ecosystem as well. It's not that I'm talking something which but many of you would have done that mistake as well. I did as well. I have also, in terms of sometime become impulsive onto any of my ecosystem peers or employees but in that process, do you do good to yourself? Absolutely not. उसको तो आपने अच्छा किया ही नहीं है. You have not done any good to yourself, right? And the way I would also say consciouspreneur is like, all of us knows कि 6 बजे उठना है सवेरे, ठीक है? But still हम अलार्म लगाते हैं ना. तो consciouspreneur is an alarm for you to remember yourself, what you need to do and what you should do. That's where I would put it. अब हम लोग इसका लीडरशिप और बिजनेस में कैसे एप्लीकेशन हो सकता है ये जानना चाहेंगे. जैसे कि देखो लीडर्स ऑफिस पॉलिटिक्स पीयर प्रेशर में आ जाता है, तो वो कैसे इसको ये कर सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का में हम कॉन्शियस कल्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो कि हमने खुद ने इम्प्लीमेंट किया था इन माय इकोसिस्टम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई वाज स्पीकिंग during the day with Shivji on this one. So when I took over a role at a point of time, हमारे जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, and I'm talking of the western part of the world, उनके जो इंसेंटिव थे, they were aligned with business growth. Nothing wrong in it, right? कि आप कितनी बड़ी डील ला रहे हैं और कितनी प्रॉफिटेबल डील ला रहे हैं, ठीक है? All of you as a businessman would want big deal and profitable deal. तो उनके सारे bonuses and incentives were aligned with that. I just made a tweak there क्योंकि atmosphere was highly toxic. When I joined the ecosystem, I found attrition is at very high, customers are unhappy, ठीक है? आ रही हैं deals, but वो deals जो आ रही हैं तो उसमें churning भी है, ठीक है? Longevity नहीं है. तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं, तुम्हारा significant portion जो है ऑफ इंसेंटिव, ठीक है, वो 4 भाग में बांट देते हैं. डील की प्रॉफिटेबिलिटी और डील का साइज तो एक है, बट इसके अलावा 3 पार्ट और लेते हैं. भाग नंबर 1, तुम्हारी टीम में से कितने लोग रिजाइन करके गए. ये एचआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. लोग नहीं छोड़ते पैसे के लिए अकेला. देयर आर मेनी मोर थिंग्स विच कम्स इनटू प्ले, ठीक है? तो डियर लीडर, आपकी टीम के आपके डायरेक्ट रिपोर्टी एंड -1 डायरेक्ट रिपोर्टी, आप 10,000 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तो आई वुड नॉट पेनलाइज यू फॉर 8,000 और 10,000 पीपल, बट दोज टॉप 20 हु रिपोर्ट्स टू यू एंड द रिपोर्टीज ऑफ योर रिपोर्टी, इन लोगों में से कितने लोग आपके जा रहे हैं. तो एक मेजर पोर्शन ऑफ योर इंसेंटिव विल बी अलाइंड ऑन दिस. द सेकेंड वन ही सेड कि मुझे आपसे चाहिए कि आपकी जो कस्टमर रेफरेंसिबिलिटी होती है, आपके जो करंट कस्टमर है, आपकी बिजनेस यूनिट है और बिजनेस यूनिट $100 मिलियन की एग्जांपल, ठीक है? तो $100 मिलियन की बिजनेस यूनिट में आप में भी आपके पास 20 कस्टमर होंगे, ठीक है? और आपका टारगेट है उस 100 मिलियन की बिजनेस यूनिट को नेक्स्ट ईयर 30% ग्रो करके 130 पे लाना, फॉर एग्जाम्पल. तो जो 30 मिलियन आप एडिशनल ला रहे हैं, उसमें नई डील्स में आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने कितनों ने रेफरेंसेस दिए. आपको वो कोल्ड कॉलिंग नहीं करनी पड़ी, किन्होंने आपको रेफर किया टू देयर इकोसिस्टम, हाउ मेनी कस्टमर्स आर रेफरिंग यू. So there is another incentive aligned. And the third one which I said, कि आपका incentive will be on how many white papers or leadership talks you are doing. In addition to your profitability and deal size. अब इसका क्या नतीजा हुआ? नतीजा was मेरे इकोसिस्टम में, मेरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया.
देयर वर पीपल, देयर वर लॉट ऑफ हूज एंड क्राइज, ये कौन है और क्या बकवास है, राइट? बड़ी डील लाओ एंड प्रॉफिटेबल डील लाओ, पैसे बनाओ, बाकी डिलीवर लोग करेंगे, दैट्स व्हाट इज द अप्रोच. आई सेड नहीं नहीं, दिस इज नॉन नेगोशिएबल, दिस इज डन, दिस इज डन. अब आपकी बात है whether you want to align it and deliver to it, that's what you have to. You don't have a choice. There are some people who decided to move on. There are some people who reluctantly aligned. नतीजा क्या हुआ? Fast forward within less than a year, attrition came down significantly. क्योंकि इनके इंसेंटिव अलाइन थे ना, तो अपने आप वो बिहेवियर ठीक होने लगा. ठीक है, अब attrition was not just HR's responsibility. Attrition became the business manager's responsibility as well. One, customers all of a sudden started talking positives. क्यों? क्योंकि ये भाई लोग अब देखने लगे थे, कस्टमर से मिलने लगे, एंड दे ऑल्सो न्यू कि उनका इंसेंटिव इज अलाइन टू द कस्टमर रेफरेंसेबल डील्स. तो अब कस्टमर रेफरेंसेबल डील चाहिए तो उनके पास बात बैठना होगा, बात करनी होगी. एंड द थर्ड, व्हेन दे स्टार्टेड राइटिंग वाइट पेपर्स, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना, उसके लिए यू विल हैव टू सिट डाउन, रिसर्च, रिफ्लेक्ट, राइट. तो जब आप ये काम करने लगते हो ना, तो आपकी सोच जो है वो भी ग्राउंडेड होने लगती है. तब आप जो है अननेसरी चिल्लाते नहीं हो, तब आपको लगता है पढ़ना भी पड़ता है. एंड देन व्हेन यू स्टार्टेड टॉकिंग टू द रिफाइंड फोरम्स, देन यू स्टार्ट मीटिंग डिफरेंट सेट ऑफ पीपल. देन आपको वो अपना रजवाड़ा या किंगडम जो हम कहते हैं ना एक भाषा में, वो अकेले के आप नेता नहीं हो. देन यू आर गोइंग आउटसाइड एंड आपकी हाइट वहाँ नापी जाती है. आप बहुत बड़े 8 फीट के हो, वहाँ पे 4 के हो गए फॉर एग्जाम्पल. सो दैट्स द एग्जाम्पल. अपग्रेड करने लग गए जैसे हम अपने आप को. एब्सोल्युटली करेक्ट. और अगर मैं मतलब भारत के इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाएं अर्ली 90s में, ठीक है, इस इकोसिस्टम में कहीं कोई ज़रूरत नहीं थी मिस्टर नारायण मूर्ति को कि एक इतना बड़ा ईसॉप क्रिएट करें एम्प्लॉयज़ के लिए. खूब लोग काम करते थे, नौकरी करते थे, ढूंढते थे, राइट. ही वॉज द मैन हु फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएटेड एंटरप्रेन्योर्स विद इन कॉर्पोरेट, मिलियनर्स विद इन कॉर्पोरेट, एंड चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, राइट. आज मेरे ख्याल से आप कईयों को आपको याद होगा कि इन्फोसिस का ड्राइवर करोड़पति है, वॉज यूज टू बी द हेडलाइन, ठीक है ना, ऑन द न्यूज पेपर. व्हाट ए ब्यूटिफुल सेंटेंस, राइट. What he effectively did, he effectively demonstrated a new ethos of conscious ownership without being declared that as a terminology. And organization became the darling of both National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange, even NASDAQ. सर काफ़ी टाइम क्या होता है, एज अ बिजनेसमैन हम लोग एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स भी देते हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं, उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसेस और टाइम भी स्पेंड करते हैं. जब वो काबिल बन जाते हैं कि ये ट्रेंड हो गए, तो ऐसे होता है काफ़ी टाइम कि कोई उनको अच्छी ऑफर दे देता है और फिर वहाँ से देन हमारा सब एफर्ट जो है वो वेस्ट होता है, वो स्विच ओवर कर देते हैं. अभी जब हम लोग कॉन्शियसप्रेन्योर की बात करते हैं, तो एज अ कॉन्शियसप्रेन्योर ये चीज़ हमने कैसे लेनी चाहिए? वेरी वेरी राइट एंड वेरी करेक्ट एंड एप्ट क्वेश्चन. देखिए, एट्रीशन जो है सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता. देयर आर 3 अदर पैरामीटर्स विच कम, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बिजनेस मैनेजर्स का मैंने अलाइन किया इंसेंटिव ऑन एट्रीशन. लोग छोड़ के जाते हैं. देयर आर 3 अदर पैरामीटर्स. 1, टॉक्सिक कल्चर. द सेकेंड इज रिस्पेक्ट फॉर दैट इंडिविजुअल. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 8 दिन के बच्चे से लेके 80 वर्ष के यंग पर्सन, आई वोंट से ओल्ड पर्सन, ठीक है, 80 वर्ष के यहाँ पे यंग पर्सन बैठे हैं, ठीक है, 80 वर्ष के, डीप इनसाइड इज आई शुड बी रिकॉग्नाइज्ड. द सेकेंड एस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट एंड थर्ड एस्पेक्ट इज ग्रोथ. कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, तो व्हाट इज माई ग्रोथ. If you can align in addition to these 3, आप छोड़िए, कोई छोड़ने की बात, forget it. और मैं आपको एक रियल, आप लोगों ने आज से 2 महीने पहले, मुश्किल 2-3 महीने पहले, whether you have seen that in newspapers or not,
अभी हम एआई बबल की बात कर रहे हैं, बट आज से 3 महीने पहले मेटा, जो कि पहले फेसबुक के नाम से थी, दे रीच्ड आउट टू द सेट ऑफ, दे वांटेड टू हायर द एआई इंजीनियर्स, और उनका ओपन ऑफर था टू गूगल का डीप माइंड के जो एआई इंजीनियर्स हैं ना सारे, उनको ओपन ऑफर था कि $100 मिलियन का साइंड बोनस, ज्वाइनिंग बोनस, आप 100 मिलियन एंड ऊपर कोई ले लो, साइन ऑन बोनस एंड ज्वाइन अस। आप बताएं, आप देख रहे हैं पैसे की कहां बात कर रहे हैं, एक तरह हम ले ऑफ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरह हम स्किल की इसकी बात कर रहे हैं। नॉट ए सिंगल पर्सन ज्वाइंड, नॉट ए सिंगल पर्सन लेफ्ट। तो यू नो व्हाट, आप अनकॉन्शियस वे में अगर सोचेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस और पैसे बढ़ा दो रुक जाएगा। फिर आपने क्या किया, गेम खेल लिया एक दूसरे तरीके का, उसने दूसरी जगह जाके और पैसे बढ़ा लिए, फिर मूव हो गया। नाउ आपने ट्रांजैक्शनल खेल लिया। लेकिन अगर आपने फाउंडेशन पे ध्यान दिया, ग्रोथ पे, उसकी कल्चर पे अपने, एंड अपने मैनेजर्स को, कि भाई तुम बोलते ही बोलते हो कि सुनते भी हो अपने नीचे के लोगों की, राइट, रेस्पेक्ट, लिसनिंग, ठीक है, then you create a very different atmosphere. And you know what, if you become this conscious, लोग रुकेंगे नहीं, लोग बंध जाएंगे। That's where I would put it. The example, live example we talked about, Meta, $100 million sign on bonus, वही काम करना है। And I'm sure 100 million में we all know anything can be bought on this planet. ठीक है, वही काम करना है, 100 मिलियन ले लो, आ जाओ, नो इंटरव्यूज, पीपल डिडंट गो, दैट्स कॉल्ड द कल्चर। लीडर के लिए तो ये इनवैल्यूएबल हो गया है। जैसे हम जानते हैं कि अब जेनजी है, हमारे प्रोफेशनल्स है, स्टूडेंट्स है, इनके लिए क्या गाइडेंस बन सकता है? और मनोज जी, इसके लिए कुछ हम प्रॉब्लम्स लेते हैं जिसको लेके हम डिस्कस करते हैं आगे। श्योर। जैसे फैमिली बिजनेस है जहाँ कॉन्फ्लिक्ट कॉमन चलते ही है। जैसे एक एंटरप्रेन्योर है समझो, उसके भाई बोलो, बेटा बोलो, या नेफ्यू बोलो, या उसके पार्टनर बोलो, जो बिजनेस में अलग तरीके से काम करना चाहते हैं। बिजनेस का एक विजन बना हुआ है, वो विजन के साथ में अलाइन नहीं है। तो ऐसे वक्त ये कॉन्शियस बिजनेस, जो बिजनेसमैन है, जो कॉन्शियसली कैसे ऑपरेट कर सकता है, उसने क्या करना चाहिए? 2 सिंपल टर्म, रोल एंड सोल, ठीक है। तो रोल एंड सोल, रोल जो है आपका आपके बिजनेस इकोसिस्टम में है, सोल आपके घर में है, ठीक है। तो अगर आपने अपने बिजनेस इकोसिस्टम में रोल डिफाइन कर लिए विद डिफाइंड KPIs एंड KPPs, और घर में बोला कि यार नाउ यू आर माय भतीजा और यू आर माय भाई और वॉट एवर, यहाँ पे you are head of marketing or you are head of sales or you are head of strategy or whatever is the case, here I will measure you for this, there I will not even talk about that. दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जब हम भाई से MD की तरह बात करते हैं और MD से भाई की तरह बात करते हैं, right? The problem comes when at home you behave like MD, and problem comes when in business you want to tell your MD that hey, you are my chacha, so behave with me, right? That's where the conflicts are. So role versus soul, agar aapne ye kiya, and from conscious perspective, the way I would say is, it's not the game of bhavukta, it's the game of spashtata. The moment you bring that clarity and take about that emotions, I think you're done. And that requires a bit of discipline, and there are so many big business houses who are doing that, and we can take lessons from them. Yeah, that's what I would say. बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस में तो लगे ही रहते हैं। तो बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। तो आजकल के हेक्टिक बिजनेस रूटीन में जो हम लोग कॉन्शियसनेस माइंडसेट जो है, इसका इस्तेमाल करके वर्क लाइफ बैलेंस अचीव कर सकते हैं क्या? वो कैसे? मैं थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करता हूँ। आई डोंट कॉल द वर्ड वर्क लाइफ बैलेंस। द मोमेंट वर्क लाइफ बैलेंस हम बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है 50-50,
ठीक है, आई वुड कॉल इट वर्क लाइफ इंटीग्रेशन. ठीक है, वाई डू आई से सो इज वर्क लाइफ इंटीग्रेशन. सी देयर मे बी डेज जहाँ पे यू नीड टू पुट योर फोकस 80% टू योर वर्क प्लेस, and in that day you can spend 20% time with your family. But there may be days where you are spending 80% of time with your family and loved one and 20% depending upon the priority. अगर आपने अपना mindset थोड़ा सा इस तरीके से अट्यून कर लिया, then you that work life integration and work life balance goes very beautifully. So it's not the game of turf कि आधा वहाँ आधा यहाँ. It's the game of harmony. ठीक है, एंड ऑर्केस्ट्रा में हम क्या करते हैं, राइट? कंडक्टर जो है वो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स को सिम्फनाइज करता है, दैट्स वेयर द मेलोडी कम्स. नाउ इफ यू हैव क्रिएटेड एन ऑर्केस्ट्रा इन ए वे वेयर यू नो कि कब गिटार को ज़्यादा बजाना है और कब तबले को कम बजाना है और सितार को या वट एवर वायलिन को ज़्यादा बजाना है, देन यू आर राइट. सो दैट्स वेयर आई वुड से वर्क लाइफ बैलेंस. Let's not confuse ourselves with the word balance or 50-50. It's more about how do we integrate, sir. ने जैसे बताया वर्क लाइफ बैलेंस या इंटीग्रेशन की तरह से देखें तो वी कैन सॉल्व इट ऑन आवर ओन ओनली. वैसे ही जैसे भी एक और आगे अपन कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मार्केट में कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर है, बाइबरी दे रहा है या फिर डुप्लीकेट माल दे रहा है और वो एडवांटेज ले रहा है, बिजनेस जा रहा है हमारा. अब ऐसे अनइथिकल कंपटीशन के सामने एक ऑनेस्ट एंटरप्रेन्योर कॉन्शियस अप्रोच से कैसे बिजनेस कर सकता है या कैसे करना चाहिए उसने? There are two options you have. Option number 1, आप भी वैसे ही काम करिए, ठीक है, एंड आप भी बिजनेस बढ़ाइए, खड़ा कीजिए, ठीक है. एंड दूसरा ऑप्शन इज कि नहीं यार, मेरा अपना एक वैल्यू सिस्टम है और मेरा एक एथिक्स है, उसमें हो सकता है मैं धीरे चलूँगा, ठीक है, लेकिन मैं चलता रहूँगा, ठीक है. नाउ फर्स्ट वन में यू आर ऑल्सो डूइंग अनएथिकल और इनकरेक्ट. यू आर इन्वाइटिंग 2 गेस्ट्स अलॉन्ग विद योर सेल्फ, जो कि आई एम श्योर एट वन पॉइंट और अनदर पॉइंट इफ यू हैव डन इट, 2 अनबुलाए, अनदेखने वाले, अनचाहे मेहमान हमेशा आपके साथ आते हैं अनएथिकल में. One is stress and second is fear. Absolutely. बिल्कुल सही कह रहा हूं. ये 2 अनबुलाए, अनचाहे मेहमान आपके अगल और बगल में चल रहे हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज, जिस बिजनेस की, जिस धंधे की बुनियाद अगर इनकरेक्ट फाउंडेशन पे क्रिएट हुई है तो इमारत भी उसी तरह की फाउंडेशन पे चलेगी. नाउ चॉइस इज अवर्स. व्हेन आई से रिच विद मनी एंड रिच विद माइंड, how many of us here, and I would say unanimously everyone will agree कि यार I want money but at cost of peace of mind. हम बोलते हैं ना, I want money but not with restless mind. अगर हम restless mind को चाहते हैं, then we will have to apply certain parameters, and उस प्रोसेस में अगर हम ये बोले कि हमारा कॉम्पिटिटर ये कर रहा है तो मैं भी ये करूं, चॉइस है आपके पास, यू कैन डू इट, बट इन द फ्रेमवर्क विच आई एम टॉकिंग, चाल हो सकता है थोड़ी धीरे रहे, ठीक है. अगर आप देखते हैं मैराथन जो है वो कैसे रन की जाती है, हम लोगों ने देखा है ना, रनर जो है कंसिस्टेंट होता है, तेज नहीं दौड़ता शुरू में, वो लास्ट के लैप्स में ही तेज होता है. लेकिन 100 मीटर वाला जो है वो शुरुआत ही बहुत तेजी से करता है. नाउ चॉइस आपके पास है कि आप मैराथन रन कर रहे हैं या आप स्प्रिंट रन कर रहे हैं एज ए बिजनेस. एंड अगर आपके दिमाग में मैराथन है तो फिर उसको विजुअलाइज करिए, उसके तरीके से रन करिए. सर इसी सवाल को थोड़ा मैं ऐसे पुट अप करना चाहूँगा कि सपोज एक सिनेरियो हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है, सपोज 100 CR का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेज में हम लोग गए हैं कि जहाँ पे प्रोजेक्ट अवार्ड होने वाला है, और वो टाइम पे ड्यू टू सम अनएथिकल थिंग्स वो प्रोजेक्ट हम लोग लेते नहीं है बिकॉज ऑफ कॉन्शियस.
अभी नेक्स्ट टाइम अगेन सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आती है, देन ऐसे एक सोचना आता है कि विथ सम एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, तो प्रोजेक्ट पे सपोज आगे 500-700 लोगों को जॉब मिलने वाला है, बिजनेस के वजह से जॉब क्रिएशन जो होने वाला है, दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। तो एक अनकॉन्शियस एक्ट से, जो छोटा सा अनकॉन्शियस एक्ट समझो है, उससे एक बड़ा कॉन्शियस गोल अगर अचीव होता है तो ये सही है या नहीं है? ऐसा मॉरल डिलीमा जो है, इसमें कहाँ कैसे लाइन हम लोगों ने खींचनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? सी दिस इज अ क्वेश्चन, अगर हम पीछे जाएं तो इवन चाणक्य नीति में भी आता है। एंड दिस इज अ ट्रू डिलेमा कि 100 करोड़ का बिजनेस है, थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर दूं तो 100 करोड़ तो है ही है, 500 लोगों को मैं जॉब भी दे रहा हूं, तो आई विल स्टार्ट लुकिंग गुड ऑल ऑफ ए सडन, वेरी ब्यूटिफुल, एंड दैट चॉइस इज अवेलेबल नाउ। अगर उसको डबल क्लिक करें हम तो थोड़ा सा पाएंगे, ये आपने अभी बिजनेस एक्वायर करने में काम किया, दिस इज नॉट एन एक्ट, स्लोली दिस बिकम्स ए हैबिट। आपने पहले आपने एक्वायर करने में किया, देन आप बोलेंगे एक थोड़ा सा ट्वीक क्वालिटी में भी कर देते ना यार, क्योंकि थोड़ा सा क्वालिटी में करने से ये मार्जिन भी बढ़ेगा। एक बार की तो बात है, अब जब आपने दूसरी बार ये कर लिया तो तीसरी बार आप हो सकता है एम्प्लॉय सेफ्टी पे भी चले जाएं। ठीक है, दिस इज हैबिट, एंड इन दैट प्रोसेस यू आर क्रिएटिंग समथिंग, अगर मैं उसको दूसरे एंगल से कहूं, अ फाउंडेशन, जहां पे कि ना वो डायनामिट लगा हुआ है, वो कब फूटेगा, इट्स द मैटर ऑफ व्हेन नॉट इफ, बिकॉज फियर मॉन्गरिंग आपने अपने लिए क्रिएट कर ली है, स्ट्रेस आपने अपने लिए क्रिएट कर लिया है, एंड आप अब एडजस्टमेंट वाले लोग हो गए। जो एडजस्टमेंट से आगे बढ़ाना शुरू करते हैं वो एडजस्टमेंट पे हिसाब किताब में, राइट? एंड द कॉन्शियस रेस्पॉन्स इज, ठीक है यार, 1 2 3 बार हारेंगे, बट अगर आपने 100 करोड़ के 2 भी छोड़ दिए ना, तो अगले 5 साल 10 साल में यू माइट बी इजीली एबल टू क्रिएट दैट 1000 करोड़, उसको सरपास कर सकते। कितने बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स हैं जिन्होंने एम्पायर क्रिएट किए हुए हैं, अभी हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, राइट, अभी बात करी, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट एक एडजस्टमेंट, द कॉन्शियसनेस और द कॉन्शियस प्रैक्टिस और कॉन्शियस लिविंग और कॉन्शियस बिजनेस एथिक्स इज नॉट लाइक ए टैप, चला दिया अभी और बंद कर दिया, ठीक है ना। दिस इज a habit which converts into nature, and once you develop that nature, आप देखेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके एम्प्लॉयज, आपके फलाने जो आपको कमजोर या एक्सप्लॉइट करने की सोचते थे ना, स्लोली बट श्योरली दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एंड अलाइनिंग विद यू। स्लोली, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड वेरी फास्ट, स्लोली बट श्योरली दे विल स्टार्ट, and that's what is the difference. जैसे कि अब मुझे आपने जैसे बताया भी कि बेसिकली जो हम लगाएंगे पेड़ वो वैसे ही फल आने हैं, तो हमको वो करना वही है जो हमें चाहिए, एंड कॉशियसली करेंगे, एक पॉजिटिव वे में करेंगे तो उसके फल बड़े ही आने हैं, राइट। तो अभी ऐसे ही है, और एक आगे लेते हैं कॉन्शियसनेस। अब ये समझने सुनने के लिए काफ़ी अच्छा हो गया, बट जैसे कि अभी मार्केट स्लो हो गया है, क्लाइंट का पेमेंट अटक गया है, बैंक EMI ड्यू हो चुके हैं, यहाँ पे आदमी को सिर्फ पैसा चाहिए रहता है, वो फिर कॉन्शियसनेस चला जाता है बाजू। तो यहाँ पे ये फिलॉसफी कैसे ऑपरेट होगी? देखिए, कॉन्शियस पुनर्शिप ये थोड़ी बोल रही है कि आपके पैसा नहीं फंसेगा, पैसा नहीं अटकेगा, राइट? दैट इज पार्ट एंड पार्सल of this entire pipeline of funnel of the business. Okay, you have to pay to your vendor, you have to ask your charge to your customers, and there are scenarios and situations which happen. So again you have a choice कि आप
यू नो अगले आदमी को धमकी दें, अगले आदमी को गाली दें, अगले आदमी का गिरेबान पकड़ें कि यू नो आई नीड माई मनी, राइट। और हो सकता है एक बार पेमेंट आ भी जाए, ठीक है, बट आपने हमेशा के लिए वो रास्ता बंद कर लिया उस पर्टिकुलर आसामी से, वट एवर इट इज। बट इफ यू आर फर्म कि भाई साहब यू नो लेट्स टॉक एंड गेट इट सॉर्टेड, देयर विल बी एक्सेप्शन, आई एम नॉट सेइंग कि हर जगह यू नो क्रूक्स नहीं होते हैं, बट वेन यू आर कॉन्शियस अबाउट थिंग्स, वेन आई एम टॉकिंग अबाउट यू बीइंग कॉन्शियस, आई एम मोर टॉकिंग अबाउट कि स्थिति तो है, परिस्थिति तो अपनी जगह है, बट इस पूरे प्रोसेस में वाइल यू आर डीलिंग, आर यू कीपिंग पीस ऑफ माइंड इन योर सेल्फ, ठीक है। स्थिति तो है, बिकॉज वेन यू आर पीसफुल, वेन यू आर रिच विद माइंड इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग क्राइसिस विद मनी, देन विल माइंड विल स्टार्ट नेविगेटिंग एंड फाइंडिंग द वेज आउट कि यार ठीक है अब यहाँ तो फंसा हुआ है, इसको साला बट्टे खाते में अभी थोड़े दिन के लिए डाला हमने, how do I navigate and find two more customers? How do I create and find out, you know, whatever LC we call about somewhere, right? Intent of credit or letter for credit, whatever we call, right? So, consciousness nowhere saying के you know आपका पैसा नहीं फंसेगा या आपका वो सिनेरियो नहीं, it's all about talking. It's not so-called transaction, it's a state of mind. When your state of mind is in right zone, irrespective of what is happening, then you are a better shape to handle that scenario, is what we are talking about. And इसमें ये scenario very much applicable है. Yeah. जैसे मैं एक आपको वो एग्जाम्पल आपके इस पे से ख्याल में आया, मैं उस दिन भी आपसे बात करते हुए बोल रहा था, वो वापस से एक बार दोहराता हूँ कि मीन्स आई एम गोइंग टू किर्लोस्कर ऑयल इंजन को कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर रहा था, नियरली आई ट्रैवल फॉर 3.5 years एंड आई एम नॉट एबल टू कन्वर्ट इट, बट वन सडन डे आई एम गोइंग दैट साइड एंड ऑन द वे आई मेट माई गुरु, तो कहा किधर जा रहा है, तो मैं बोला सर ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, बट वो आदमी को मैं प्लीज़ करने के लिए जाते रहता हूँ, तो जा रहा हूँ। तो बोले यार तू यहीं पे सरेंडर करके जा रहा है, बोले तेरे को मिलना तो कुछ नहीं है। एंड ही स्टॉप मी, वेट आज थॉट बदल, यहाँ बैठ मेरे पास में, आई विल चेंज योर थॉट, गो बट विद दिस न्यू थॉट। तो उन्होंने थॉट दिया कि तू अभी ये बोल के बैठ, देवी का मंदिर था, मंदिर भगवान के पास जा 10 मिनट बैठ और ये बोल, मैं आज जा रहा हूँ, मेरा जो प्रोडक्ट है मैं वो कस्टमर के लिए बनाने नहीं जा रहा हूँ, मेरा ये प्रोडक्ट, ये कस्टमर का एंड प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहा उसको सेफ्टी में दिलाने के लिए जा रहा हूँ। क्रिएट दिस थॉट, व्हेन योर माइंड इज स्टेबल विद दिस देन यू गो लिव फ्रॉम हियर। और मैं उस दिन गया, मेरा उस दिन का ट्रायल, उसके पहले के सब ट्रायल सक्सेस हुए थे, 3.5 साल में एक भी ट्रायल फेल नहीं हुआ, और उस दिन का ट्रायल फेल हुआ, बट वहाँ पे जो 12 लोग खड़े थे ट्रायल के लिए, वो सबके सब उसके सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। राइट, दैट इज द व्हाट आई सीन ऑन दैट डे, द चेंज ऑफ माइंडसेट का जो इम्पैक्ट देखा था। तो मैंने वो एक बार किया गया, वो रिपीट कैसे, दैट इज़ वन क्वेश्चन। सेकेंड, अभी जैसे हम लोग बोलते हैं, हमारे दादा परदादा ये लोग बोलते थे हमको बचपन से, मैंने तो भी सुना है कि ईमानदारी से काम किया करो, लोगों का भला करो, शांति बनाए रखो। तो ये सब चीज़ें और कॉन्शियसनेस, इसमें क्या बदल है? मेरे को तो लगता है कि वो पुराने बॉटल में नहीं, ये हो गया है बस, ओल्ड यू नो न्यू वाइन, न्यू ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वैसे हो गया वो। सी आई विल पिक अप बोथ द पॉइंट्स श्याम जी। सो फर्स्ट वाला जो आपने एग्जांपल लिया कि 3.5 साल तक गए एंड देन इट ट्रांसलेटेड ऑन दैट डे, बट अगर हमको इसको रेप्लिकेटिंग टेम्पलेट पे बात करनी है ना, तो one of the approach which I normally talks to all my mentees or people with whom I work with is the mindset, and mindset is of two ways. One mindset is playing not to lose, and the second mindset is playing to win. आप दोनों mindset में खेल रहे हो और पूरी स्थिति से खेल रहे हो, but playing not to lose में आप एक्सेलरेटर के साथ ब्रेक पे भी पैर रखे होते हो, नोइंगली अननोइंगली, बट आप रखे होते हैं। बट व्हेन यू आर प्लेइंग टू विन,
दैट माइंडसेट इज, जो आपने कहा, उस दिन आपका टेस्ट भी फेल हो गया, फिर भी आपके सब लगे हुए हैं कि यार इसको, वो प्रोडक्ट उसके बाद सक्सेस हुआ है, Correct. अभी वो चल रहा है. राइट राइट, दैट्स वेयर आई एम सेइंग. उसके पहले सैंपल वाज ऑल गोइंग फाइन बट स्टिल नो ऑर्डर. उस दिन वो फेल हुआ तब भी ऑर्डर. So that was a mindset. ठीक है. So replicate aspect is playing not to lose versus play to win. One, in terms of the replicating template. Now, old wine in new bottle. That's where I said, right? Somewhere I would say is, this is the timeless wisdom which I am talking of. जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात करी कि हम सबको पता है 6 बजे उठना है, फिर भी हम अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना, राइट? नाउ द 2 पॉइंट्स विच यू सेड स्पेसिफिकली एंड आई पिक अप दोस, कि हमारे बुजुर्गों ने बताया ईमानदारी से काम करना पहला, और हमारे बुजुर्गों ने बताया कि शांत रहना, लोगों का भला करना. लोगों का भला. अब हम इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलते हैं बिजनेस में. ठीक है, हम पूरे अप्लाइड बात कर रहे हैं. जब हम बात करते हैं कि यू नो ईमानदारी से काम करो, अब आप थोड़ा पीछे चले जाइए और अभी आगे आ जाइए. जब हम पहले बात करते थे, जब ये भाई आज एसओपी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा रिवाइज करते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. अब ये वाले एसओपीज बने थे 500 200 300 फलाना साल पहले. उसके बाद तो कितने बड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आ गए. अब इन एसओपीज को हम थोड़े से कॉन्शियसनेस फ्रेमवर्क में रिवाइज करते हैं. कैसे? पहला, ठीक है, लोगों का भला करना या ईमानदारी से रहना. ठीक है, नाउ ठीक है, मैं तो ईमानदार हूं, बट मेरा जो एम्प्लॉई है उसका दिमाग, खोपड़ी इधर उधर घूम रही है. तो वी आर टॉकिंग ऑफ क्रिएटिंग दोज फ्रेमवर्क्स अराउंड सो दैट दे स्टार्ट वर्किंग, बिहेविंग वेल. तो जब हम बात करते हैं ना ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, दिस इज एक्चुअली क्या हो गया है, हमारे यहाँ की बात करें, दिस इज इक्विवेलेंट टू ये ज्ञान पुस्तकों में लिख के रख के पूजा घर में यूं रख दिया बंद करके. ठीक है, हमारे ने कहा हम वैसा करेंगे. अरे अप्लाई पे जाइए ना. अभी हो क्या रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड, आप पढ़ाते हैं, वो अप्लाई करते हैं. फास्ट स्पीड के ड्राइवर यहां पे भी हैं, ऐसा तो नहीं है वहां पे नहीं है. आप वहां पे जाके बिल्कुल स्पीड से चलाते हो. क्यों चलाते हो? सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, और यहां पे भी जहां जहां लग गए वहां आपकी स्पीड हमेशा ठीक हो जाती है. वहां पे टिकट कट जाती है, यहाँ पे पैसा दे के निकल जाते हैं. राइट. सो इट इज नॉट अबाउट आप ईमानदार हैं. हैव यू क्रिएटेड द इकोसिस्टम एंड प्रोसेसेस फॉर योर वर्क फोर्स टू बिहेव अप्रोप्रिएटली. आप ऊबर में जाते हैं, आप एयरबीएनबी में जाते हैं, उसमें होता है ना रेटिंग का, ड्राइवर करेगा कस्टमर की, कस्टमर करेगा ड्राइवर की, दोनों सही बिहेव करते हैं. राइट, प्रोसेस क्रिएट कर दिया आपने. आप समझ रहे बात को? तो हाउ डू यू, सो व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इज, यस ये सिखाई, इट्स नॉट ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल. अभी मैं फिर आता हूं इस पे. दूसरा ले हम बात करते हैं शांत रहना. ठीक है, अरे बिल्कुल रहना चाहिए, बट शांत वाइल यू आर रनिंग, मैनेजिंग, लीडिंग द पीएनएल इज अ डिफरेंट थिंग. Right? Being peaceful alone, sitting in solace is a different thing. While that is also आज के ज़माने में तो बिल्कुल गायब है. Most people are lonely when they are alone. Right? That's what is the issue. और मैं एक और दूसरी बात कहता हूँ, अगर हम 100 साल पहले जाएं तो हमारी आबादी 1950 में अबाउट 2.5 बिलियन होती थी, और उसके पहले 100 साल जाएं तो अबाउट 800 मिलियन होती थी, 792 मिलियन और सो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं. और 2050 पे जाएं हम तो ये आबादी बोलते हैं 10 बिलियन हो जाएगी. तो 200 साल में अगर हम बात करें तो ये आबादी समवेयर, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड 12-15x हो गई है ना. 800 मिलियन से आज की भाषा में 10x हो चुकी है. ठीक? तो इस धरती पे आज की डेट में हमारे आसपास सबसे ज्यादा लोग हैं, उसमें हम सबसे ज्यादा लोनली फील कर रहे हैं. व्हाट अ पैराडॉक्स. नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ शांत रहना, व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ, व्हाट वी आर टॉकिंग इज, यस यू शुड रिमेन पीसफुल while running that P&L as a business owner. That is.
So when I talk about, or when you say old wine in new bottle, no, I will say a little forward. It is a wine, maybe old wine, but not in bottle, in the glass. आप वाइन को जो है, there are exceptions जो बॉटल से भी चलने देते हैं, right? Exceptions वो भी है. But the moment you put the wine in bottle, आप बटन ढक्कन लगा देते हैं. बराबर है? लेकिन जैसे ही आप उसको ग्लास में ले लेते हैं, फिर आप उसको पीते ही पीते हैं. So what we are talking is, this is not old wine in new bottle. This is old wine or timeless wine in the glass. In the new glass, where you will apply it. So that's where we are talking about the consciousness. It is not, this is the timeless wisdom. I'm not saying we are talking, but we are saying how do you apply? ईमानदार बनिए यार. But ईमानदार does not means कि सामने वाला आपको आपकी ईमानदारी को taken for granted ले रहा है. Right? So what we have to see it, how are we applying and then taking it to next level, and in that process making somebody else work and deliver, and at the same time we keeping our peace of mind in place. That's what I would say, sir. Can you name few prominent business persons जिसको आप कॉन्शियस स्पिनर करके बोल सकते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं? So एक एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, नारायण मूर्ति साहब का, right? He might not be in the tag of conscious punner, but exactly what he demonstrated was conscious punnership. There was no one asking him to create millionaires. There was no one asking him to share the wealth, but he did, and in that process he really became rich, right? आप देख लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले खांसी जुकाम होता था तो रिलायंस के बाद इन्फोसिस ही ऐसा था, ठीक है ना? और इन्फोसिस वाज इवन बिगर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. अदर एग्जाम्पल ने हम रतन टाटा साहब लास्ट ईयर गए, राइट? थोड़े समय पहले गए, लेट्स पुट इट लाइक दिस. 26/11 का वो मुंबई ताजमहल होटल का इंसिडेंट कितना बड़ा हुआ था, ठीक है? ही कुड हैव रीबिल्ड द ताजमहल होटल ओनली, but in addition he made sure that entire community which got affected, right from panwala to rickshaw wala to auto wala to railway workers, उनकी सारी families gets uplifted and taken care of. ज़रूरी तो नहीं था करना उनके लिए, right? और जो थोड़े समय पहले गए, इस धरती पे ढूंढने वाला मुश्किल हो गया कि कोई उनके बारे में नेगेटिव तो बोले. आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज फ्लाइंग एयर इंडिया just a day after when he passed away, and the air hostess was speaking to him saying that कि sir, what a man he was, we are still struggling to find out. Someone telling that that was someone who did wrong here and there. क्या उनके पास यूनियन का प्रेशर नहीं था? क्या उनके पास प्रॉफिटेबिलिटी का प्रेशर नहीं था? क्या उनके पास रेवेन्यू ग्रोथ का प्रेशर नहीं था? क्या उनके पास एम्प्लॉय नेट प्रोमोटर स्कोर का प्रेशर नहीं था? दिस वॉज द ग्रुप विच वॉज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. एंड आप सब लोग जानते हैं, द मोमेंट यू हैव डन द IPO, हर 3 महीने में जाके जवाब देना पड़ता है. एंड आई हैव सेट ऑन दोज बोर्ड रूम्स जहाँ पे कि वो जो रिपोर्टर्स बैठते हैं और उनका खोपड़ी चलती है स्लाइस एंड डाइस में, और वो 100 अच्छी चीज़ों के बजाय वो एक गलत चीज़ को पकड़ के कैसे ब्लो करना है. दैट्स वेयर, एंड दैट्स एज समवन हु इज सिटिंग ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैव टू एंश्योर टू टेक केयर. तो क्या उनके पास वो इशू नहीं थे? आज की नई भाषा में हम लें कॉन्शियस पुनर एग्जाम्पल्स, एंड आई रियली हैव लॉट ऑफ रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर दिस जेंटलमैन श्रीधर वेम्बू, राइट? So these are some of the examples which I would say, and I'm sure you can relate with these names, right? तो इसको चलो एक सेंटेंस में अगर समराइज करना है तो वो कैसे करेंगे आप? जोश के साथ होश भी, which is passion with awareness, number 1. And number 2, when I say rich with money, rich with mind, again I would go to the same. रहीस और अमीर सिर्फ धन से नहीं, मन से भी. That's how I would summarize and link profit with purpose.